Hello everyone, welcome to session. So today we'll be discussing proportion and variation. Before you attend the session or before you watch this session, make sure you have watched earlier sessions in this playlist of arithmetic. And especially to watch this video, you make sure you have watched the videos of concept of ratios, because this concept is related to ratio and I have covered few things in ratio earlier. So make sure you watched at least these three videos. I think there are on the ratios before you watch this video. Fine. And here I have written few definitions. I think first time you'll be like seeing this much written thing in the PPT. So because there are few terms that might confuse few people, so that's why I've taken this thing, and I will explain these definitions like proportional, extreme, means, what are mean proportional, what are third proportional. Sometimes it's create confusion in mind of students, so that's why I have written this definition. So let me just explain it. These are very simple things, many of you know already, so don't need to like worry too much. Very simple things. When two ratios are equal, then four quantities involved in the ratios are in proportional. So like suppose this is the ratio, A is to B equal to C is to D, then you would say that A, B, C, D are in proportional, or A, B, C, D are proportional. And when this is like A, B, C and E, F and G, H and so on, this is called, like, these terms are in continued proportional, right? And it goes on till infinite. And related to this, and we have done all these things, like we have learned this, how to combine these ratios, like these given ratios. And we have also seen few concepts related to these things, like A plus C plus E upon like B plus D plus F. We have seen few these things in the concept of ratio. I'm just recalling you. Make sure you watch that in the ratio. Fine. And you can represent, when this is there, these are in proportion, and you can represent it like this. अच्छा, ये सब मैंने यहाँ पर जस्ट तुम्हें रिकॉल कराया. These are thing I have covered in the detail in concept of ratio, so you need to cover from there that. Okay, so this is the thing, you can represent it like this. And these two terms are called extremes. These are extremes and these are means. And यहाँ से तुम देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ए डी इक्वल टू बी सी, so here it is written product of means, that is BC, equals to product of extreme, that is AD. Simple. I don't think there is nothing to explain, anything here to explain. If three quantities like A, B, C, अब देखो three quantities अगर हैं, these are called in continued proportion. And here you can see cross multiplication, so B square equal to AC. Simple. And there are two terms. This is called the third proportion. ABC, C will be called third proportion, and B will be called mean proportion, and B will be the B square equal to AC. Okay, so I hope these basic terms and definitions are clear. So let's discuss this question. Find the mean proportional between 6 and 24. Here you have seen already what is mean proportional. So mean proportional of these numbers will be mean proportional equal to square root of product of these numbers, and B square equal to AC. So this is mean, so this will be B equal to root AC. AC are two numbers and mean of these numbers is B. So this formula will be using, and this is 124, that is 12. Simple. The mean proportional between two numbers is 9, and third proportional of two numbers is 243. Find the larger of two numbers. Basically two numbers तुम्हें find करने. So mean proportional is 9, so 9 is square equals to xy. Let's say xy are two numbers, xy are two those numbers, so xy equals to 81. And second equation we get from third proportional. So third proportional, let's say that is 243. So these are the three numbers, xy 243. 243 is third proportional. So here y square equals to x 243, like b square equal to 4ac जैसा हो जाएगा. Now two unknown, two equation, you can solve this and you can get the value which is larger or which is smaller. Here I can see like one way to solve it faster, that is I multiply y both side. I have multiplied, so this become y cube. So y cube and value of xy is 81 into 243. So y equals to कितना आ जाएगा यहाँ से क्यूब, so 9 and 9 27 7 49 and 49
9 7 63, दैट इज 27. सो y का वैल्यू 27 आ गया. अगर y का वैल्यू 27 है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ से. तो लार्जर वन इज 27. हमें लार्जर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 27. What number must be subtracted from 7, 8, 11, 14 so that the remainders are proportional? Okay, so I will tell you like two ways to solve this question. One is very basic traditional approach, and other I will tell you shortcut how you can solve this question very faster. Fine. So let's say first basic approach, what you will do, what must be subtracted, क्या subtract करना चाहिए. So let's say x, so 7 minus x, 8 minus x, 11 minus x, 14 minus x. तो these numbers are in proportional. यही बोल रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे so that these numbers become proportional. So if these numbers are in proportional, so this is the equation. Now it will be a quadratic equation. Solve this equation, you will get your answer, but it will be little difficult, not much difficult, but if the values get difficult, this will become difficult to solve. Now let me tell you other way to solve this question. So fine, this is the way, this is the basic way to solve this question. Now let me tell you a little bit shortcut that you can use like to solve this question faster. So what you will do, find the difference, that is 1, find the difference, that is 3. Now multiply this with first step. One more thing here, like suppose you get here 2:6. So simplify this ratio, make 1:3. Fine. Here already this ratio is simplify. Here already this is co-prime numbers. Okay, make sure these are co-prime numbers. Then multiply this. So that is 7 into 3. Now subtract this thing, 11 into 1 divided by 3 minus 1. So this is the answer that you are looking for. Let's check. 21 minus 11, that is 10 by 2. 10 by 2, that is 5. So 5 is the answer. I hope this is clear. Again, let me repeat these steps. Simple. You don't need to solve any quadratic. 7, 8, 11, 14. Find the difference. Find the difference. That is, you will not change the order. This is important. You will not change the order. Fine. So this is 1, this is 3. And this is already co-prime. 1 and 3 are already co-prime. If these are not co-prime, suppose these were like 2 and 6. So what I will do, I will make them co-prime by cancelling 2. So that is 1 3. Fine. So if there was 2 6, I will use 1 3. Now multiply this with this, 3 into 7. Multiply this with this, that is, and difference 11 into 1. Multiply this, subtract from this. Now divide by difference of these two, that is 3 minus 1, that is, this is your answer. This is your answer, that is 5. I hope this is clear. Now if you find this type of question, instead of making equations, you will be able to solve this question much easier. Okay. Now let's talk about directly proportional and inversely proportional. I hope you guys must have learned this thing, like you have heard this term earlier in your like 9th or 10th class physics. You know, after first time you might have heard this thing in the 9th 10th class physics. After that you have seen it multiple times. So what is directly proportional? So let's talk about a very basic equation, that is d equal to st. D equal to st. And one more thing, I have discussed this equation in detail. Like अगर equation is form की होती है, if you have seen percentage, I have talked about these equation in detail कि like अगर y increase होता है तो z पे क्या change आता है, अगर x पे कुछ change होता है तो उसका effect y पे क्या होता है, and vice versa. All the combinations I have discussed there. So make sure you watch that session to get complete clarity. ठीक है. Here I am just telling you the proportion form. I will not discuss so much about change. ठीक है. जो परसेंटेज में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसी से रिलेटेड चीजें. अब यहाँ पर देखो क्या है, d इक्वल टू एस टी जो इक्वेशन है तुम्हारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट. अगर स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है तो d तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के. व्हाट इट मीन्स, लाइक अगर सपोज तुम एक डिस्टेंस 100 किलोमीटर की कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एंड सपोज इसको तुम 10 आवर में कवर करते हो,
अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइक तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट कर दी जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट कर दी जाए तो क्या होगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, जस्ट अ मिनट। हाँ कोई डिस्टेंस कवर करो, लेट्स से कोई भी डिस्टेंस लेते हो, लेट्स कोई भी डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तुम कवर करो, तुम्हारी स्पीड लेट्स से फिक्स कर दी गई 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो सीधा कनेक्शन है, अगर तुम ज़्यादा देर ट्रेवल करोगे, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये बात समझ में आ रही है? जैसे तुमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब पढ़ा होगा फिजिक्स में, सो वहाँ पर ये चीज़ आई थिंक अच्छे से समझी होगी। सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सो अगर तुम्हारी स्पीड फिक्स है कि लाइक 20 किलोमीटर पर आवर से तुम ट्रैवल कर रहे हो, तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, लाइक जितनी देर ट्रेवल करोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, सिंपल, फाइन। एंड सिमिलरली अगर तुम टाइम को कांस्टेंट कर दोगे तो डिस्टेंस और स्पीड में हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन, लाइक जितनी स्पीड में करोगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो दिस वॉज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब एक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज़ दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा ऐसे फॉर्म में होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यही इक्वेशन था डी इक्वल टू एस टी, अब इसको मैं लिख दूं एस इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, स्पीड इज हेयर, यू कैन सी स्पीड इज हेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज हेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। जैसे जो मैं एग्जांपल पहले दे रहा था, लेट्स से ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर मैं, ये डिस्टेंस फिक्स है ना, डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर, अब मैंने डिस्टेंस फिक्स कर दी, डिस्टेंस फिक्स है 100 किलोमीटर। अब ये तुम ट्रेवल कर रहे हो, अगर तुम्हारी स्पीड 20 किलोमीटर है तो यू विल टेक 5 आवर, 5 आवर। अगर ये स्पीड तुम्हारी 50 किलोमीटर हो जाए यू विल टेक 2 आवर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर स्पीड बढ़ता है, इफ स्पीड इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस, सो दिस इज इनवर्स रिलेशन, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन। अगर दोनों पे सेम इंपैक्ट होता है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फाइन। सो दिस वाज द like understanding what is direct proportional and inverse proportional. So this is valid for all relations that are of this kind, ठीक है, जो ऐसे रिलेशन है उनमें तुम इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब किया होगा पहले फिजिक्स में। एंड नाउ यू इक्वल टू लाइक वी हैव डी इक्वल टू एस टी, एंड तुम्हारा लाइक टोटल रेवेन्यू जो होता है ना, वो सारी चीज़ें, ये सारे जो भी इस फॉर्म के होंगे दे विल सेटिस्फाई दिस थिंग, इस रूल को बेसिकली फॉलो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So let's do few type of questions that can be asked from this thing. A varies directly with B when C is constant and inversely with C when B is constant. तो देखो हो क्या रहा है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के when C is constant, है ना। अब ये C constant है, C constant, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन बी इज कांस्टेंट, व्हेन बी इज कांस्टेंट, फाइन। तो अगर इसको कंबाइन करोगे सो यू विल गेट ए बी सी, ये एक इक्वेशन में देखो रिप्रेजेंट हो रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, ठीक है, ये बात समझ में आया। तो इक्वेशन देखो बन जाएगा ए इक्वल्स टू के इज अ कांस्टेंट बी अपॉन सी, दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। नाउ when a equal to 26, a equal to 26, b equal to 65, c equal to 30. Now अब देखो इसका ये मेथड, यहाँ से k निकल आएगा और फिर ये जो पूछ रहा होगा वहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। जैसे देखो फाइंड a when b is 84, c is 42, यहाँ से k की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अदर वे आई वुड रिकमेंड कि लाइक k की हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है दो इक्वेशन बना लो, लाइक व्हाट यू विल मेक, हम के को एलिमिनेट कर देते हैं, लेट्स से ये हो गया, और a2 जो हमें निकालना है a b2 c2, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, k कैंसिल हो गया, k कांस्टेंट तो सेम रहेगा, k कांस्टेंट मतलब जो सेम रहता है, जो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था स्पीड जो 20 किलोमीटर फिक्स हो गई थी, डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर फिक्स हो गई थी, दैट इज फिक्स्ड, तो ये तो चेंज नहीं होगा दोनों इक्वेशन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा b1
एंड C1 एंड दिस इज C2 एंड B2. अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो. A1 दैट इज 26, A2 हमें निकालना है एंड B1 कितना है तुम्हारा 65 एंड C2 है तुम्हारा 42, C1 है 30 एंड B है 84. So all this you'll get answer that is 21 and 5, 5, 6 and 4. ये कैंसिल हो गया था. A2 is 24. कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक 24 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे करेंगे. द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. वैल्यू ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. ठीक है, अब देखो इसमें फिर से मैं के नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. कैसे? V1 V2 W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो इफ 1.5 ग्राम का जो है दैट वैल्यू 9000 V2 निकालना है एंड वेट है 1.5 इंटू 1.5 एंड 2.5 इंटू 2.5. सिंपल. तो 9, 25 कैंसिल होगा. कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. मे बी देयर माइट बी अ मिस्टेक बट आई एम ट्राइंग कि हर चीज़ सही हो. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा बट एक बार चेक कर लेना. 25,000 आंसर आ जाएगा. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस. तो इसको अगेन ऐसे ही लिख लेंगे. ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही कर लेंगे. एक इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे. एंड इफ द वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है डेट इज 8:1 और रेडियस का रेशियो निकालना. सिंपल. क्यूब रूट इधर आ जाएगा तो R1 R2 दैट इज 2:1. द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. So value of diamond. If a diamond falls and break, अच्छा this type question has come earlier in the CAT. भी जल्दी ही ये CAT में क्वेश्चन है, so make sure you understand them properly. तो जो वैल्यू है डायमंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ डायमंड, स्क्वायर ऑफ वेट ऑफ डायमंड. ठीक है. अब देखो एक डायमंड है डेट इज ब्रेक, जो ब्रेक कर जाता है. तो लाइक डायमंड ब्रेक करके जो उसका वेट का रेशियो आता है डेट इज 2:3. तो अर्लियर डायमंड का टोटल वेट कितना रहा होगा? दैट मस्ट हैव बीन, इसको ले लेते हैं अगर लाइक वेट 1-2x है एंड फिर ब्रेक करके वेट में तो कोई लॉस होगा नहीं है ना, वो 2 पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. तो टोटल वेट अर्लियर माइट हैव बीन 5x. जो पहले वेट रहा होगा वो 5x रहा होगा. तो जो पहले इसका वैल्यू रहा होगा दैट वुड हैव बीन, अब यहाँ पर इसको हटाकर एक k कांस्टेंट लगा देते हैं. ठीक है, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है दैट इज k. अब यहाँ पर देखते हैं जो पहले इसकी वैल्यू थी अर्लियर वैल्यू, so that was k and 5x square, that is 25x square. So this was the value of original diamond, kx square. Now diamond has been break into 2x and 3x. Now calculate the value of 2x. So value of 2x will be 4kx square. Value of second part will be 9kx square. अब तुम्हें लॉस निकालना है कितना हुआ. तो अर्लियर 25 था वैल्यू, अब वैल्यू कितना है डेट इज V1 प्लस V2 डेट इज 13kx स्क्वायर. अब वैल्यू इतना है. तो वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ? वैल्यू में डिक्रीज हुआ है अर्लियर वैल्यू इतना था तो डिक्रीज कितना हुआ 25 है, 12 का डिक्रीज हुआ है 12 का. तो 4 डेट इज 48% का डिक्रीज है. डिक्रीज ऑफ 48%. आई होप यू गाइस अब ये कैलकुलेट करना है तुम्हें. सिर्फ पहले वैल्यू इतनी थी अब वैल्यू इतनी है, कितना डिक्रीज हो गया अर्लियर से? डिक्रीज 25 माइनस 13 दैट इज 12 अपॉन 25 दैट इज 48% का डिक्रीज है. द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ एन इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज अटैच्ड. इफ द स्पीड ऑफ इंजन इज 120 किलोमीटर पर आवर when 14 bogies are attached, fine, and 100 kilometer when 16 bogies are attached. You need to find the speed when there are 20 bogies attached. So this question is important. This has been earlier asked. ठीक है, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना है, रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये गलती नहीं करनी कि लाइक 120 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. 120 इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज. तो सपोज अगर पहले लाइक स्पीड
स्पीड एस है और ये डिक्रीज हो एस डैश हो गई है। सपोज पहले स्पीड एस थी और अब एस डैश हो गई है, तो दिस डिक्रीज जो रिडक्शन हुआ है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ बोगीज। ये इक्वेशन है। तुम अगर नंबर ऑफ बोगीज तुम इंक्रीज करोगे तो स्पीड रिड्यूस होगी, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of number of bogies. I hope this thing is clear. So you can make a equation and you can solve this like making this equation. Let's say earlier speed तुम्हारा let's say s था, अब 120 हो गया, this is reduction and this will be directly proportional to the 14 square, और ये हटाओगे साइन प्रोपोर्शनलिटी का तो एक k आ जाएगा कांस्टेंट। तो ऐसे तुम्हारी दो इक्वेशन बनेंगी एंड यू विल बी एबल टू k का वैल्यू निकल आएगा, टू इक्वेशन टू अननोन एंड k की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे। दिस इज वन वे। इक्वेशन समझ में आई मैंने कैसे बनाई। अर्लियर सपोज स्पीड एस थी ट्रेन की, अर्लियर स्पीड एस थी एंड नाउ दिस इज 120 एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन में हटाऊंगा तो k कांस्टेंट आएगा एंड नंबर ऑफ बोगीज। सो दिस वे यू विल मेक इक्वेशन, इससे एक इक्वेशन बनाओगे एंड k का वैल्यू आ जाएगा, s का वैल्यू आ जाएगा, यू विल पुट इट हियर एंड यू विल बी एबल टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बोगी। क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड तुम निकाल पाओगे। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, सेम तरीका है, जस्ट थोड़ा सा उसको लाइक विदाउट मेकिंग इक्वेशन सॉल्व किया गया। अब देखो रिडक्शन इन स्पीड कितना है, 20। रिडक्शन इन स्पीड 20 है, रिडक्शन इन स्पीड 20 है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो अब अगर इसको सपरेट करो तो इसके स्क्वायर से सपरेट करोगे, दैट इज 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो दिस इज कितना आएगा, 256 2 एंड 30 दैट इज 60, दैट इज 60। ठीक है, दैट इज 60 और ये k जो है बेसिकली 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। दिस k इज 1/3 नॉट 3, k इज 1/3। अब तुम यहां से कंपेयर कर लो, यहां से अगर कंपेयर कर लो, यहां से कंपेयर कर लो, यहां से कंपेयर कर लो, तो रिडक्शन कितना होगा स्पीड में, लेट्स से x होगा और k तुम्हारा कितना है 1/3 है, और इसका डिफरेंस कितना है, दैट इज 20 माइनस 16 दैट इज 4 एंड 36, दिस इज 48। सो 48 का रिडक्शन है कितने से, 100 से, तो कितना आ जाएगा 52। दिस इज द वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम किया है मैंने, जस्ट अब देखो वहां पर तुम क्या करते, कैसे ये दोनों मेथड सेम ही थे, वहां पर तुम इक्वेशन बनाते 1s माइनस 120 इक्वल्स टू k एंड 14 स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन तुम बनाते लाइक s माइनस 100 k 16 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बना दी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम इक्वेशन मिलेगी, 20 इक्वल्स टू k एंड 16 स्क्वायर माइनस 14। जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक दोनों ही चीजें सेम है, जस्ट कैसे तुम फास्टर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। The cost per kg of rice varies inversely with the square of the quantity of rice produced in a year. तो कॉस्ट जो तुम्हारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज के। नाउ व्हेन 7 मिलियन टन्स ऑफ राइस वाज प्रोड्यूस्ड, सो 7 मिलियन टन राइस वाज प्रोड्यूस्ड, सो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग q1 square and q2 square. I think this will solve our problem. When quantity was, cost was 36, quantity was 49, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 49 नहीं, मैंने 7 का स्क्वायर किया। हाउ मच was the production? तो प्रोडक्शन क्वांटिटी मीन्स when cost was 49, so this we have to find q2 square. So this get cancelled, q2 is 6 million ton. If the price was this much, so quantity was 6 million ton. Calculation एक बार चेक कर लेना, ठीक है। Fine. So this was about your like proportion and variation we have covered. Ratio we have already covered, and this was proportion and variation. And next topic we'll be discussing relations. There we will learn a very good shortcut to solve question faster. So guys, make sure like you watch this complete session and you like this session and join this Telegram channel. And you can join also Telegram group for discussion.
Subscribe to this channel, share with your friends who are preparing for CAT. So that's it for today. Let's see you in the next session.